Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we are going to do a reading on what does the next 15 days or the remaining days of July 2026 has in store for you. Like, what does the remaining days of July have for you? So we shall do a reading on that. एंड आई थिंक मैं आज कोई ग्रुप्स नहीं करने वाली हूँ. मुझे एक जनरल मैसेज, एक कलेक्टिव मैसेज चैनल हो रहा है. सो आज हम एक कलेक्टिव मैसेज देखेंगे अबाउट द सेम. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड या okay, so let's get started. And before starting the video, I would like to mention that if you want a personal reading from me, you can connect to me through my email ID given in the description box below. So I shall see you there if you want that in case. And वरना मैं यहाँ पे तो हुई. And for that you can also subscribe to my channel, like share and like comment if you want to. So yeah. So for our message today, I will be using the Everyday Witch Tarot. So let's go. मैंने ऑफ कैमरा शफलिंग कर ली है, but still I will shuffle. Okay, so let's get started. What does the collective has in store for the remaining days of July 2026, Spirit? What does the collective has in store for the remaining July 2026? Please tell us clear, concise, accurate messages. Okay. Clear, concise, accurate messages for this one, please. What does the remaining days of July has in store for our collective? What does the remaining days of July 2026 has in store for you, for our collective? Okay, thank you. What does the remaining days of July 2026 has in store for our collective? Clear, concise, accurate messages, please. Okay. So, okay. I will show you the cards in a second. Yeah. Okay. So, from the bottom of the deck, we have the Five of Pentacles. We have the Tower also beneath it, and I feel it is important here, so I will pick this up for our spread. We have, other than that, we have the Queen of Cups, the Queen of Wands, the Hangman, which actually isn't reversed here. Yeah. And the King of Wands, the Ten of Cups, okay, and the Tower. Yeah. So, पता है मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों के लिए? जुलाई के जो रिमेनिंग 2026 में जो डेज हैं, लाइक उनमें क्या है आपके लिए? First of all, okay, for people who know, who are in awareness of कि यार मेरा कोई like मतलब अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको कहीं ना कहीं एक नोइंग है दैट आई हैव और यू नो आई एम मेंट टू मीट
a soulmate, you know, my soulmate in this life, or you know, if you have even awareness of who that person is, like आपको स्लाइट सी भी अवेयरनेस है कि पहले तो that I'm meant to be with someone who is my soulmate, और who is someone जिसको मैं past life से जानता हूँ या जानती हूँ, और if you are someone who actually knows this person जो आपके soulmate हैं, तो मुझे लगता है ये मैसेज बिल्कुल आपके लिए है। ये यहाँ पे पहली चीज़ है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना कि लाइक वो पर्सन कौन है, लाइक कौन है तो नहीं, बट वो पर्सन यू नो इतने टाइम से नहीं आ पा रहा है, दे हैज़ बीन डिलेज, दे हैज़ बीन सम सॉर्ट ऑफ यू नो obstacles in that path of you guys meeting, and you know, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे चीज़ें ऐसे आ रही कि ऐसी सिचुएशन जैसे मैंने भी डिस्क्राइब किया वो अगर रही है तो वो यहाँ पर बिल्कुल यू नो सॉल्व होगी। दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन, लाइक मतलब ये तो है ही कि वो सिचुएशन सॉल्व होगी, यू विल मीट विद दिस पर्सन। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि लाइक यू नो इट इज़ हैपनिंग वेरी सून फॉर यू, it is happening very soon for you. And you know what's important here is that you understand that it will happen only at the time that is correct for you, according to the universe, not according to you. तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि यू नो अगर आपको लग रहा है कि यार, अच्छा आपको अगर ये भी लग रहा है कि यार लाइक विल आई इवन मीट, लाइक ऐसा मैं नहीं कह रही कि आपको ये पहले से था, बट यू नो कभी कभी आपको ऐसा डाउट होता है कि लाइक विल आई मीट माई सोलमेट और माई पर्सन हु आई नो, और यू नो हु, मतलब इट्स लाइक कि जैसे सॉरी मेरे को ऐसे बोलने में दिक्कत हुई, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी की आप ना ये चीज़ के बारे में जानते हो कि यार आई एम मेंट टू बी विथ माई सोलमेट, बट यू डोंट यू नो लाइक टेल इट टू एवरीवन, यू आर नॉट रियली मतलब ऐसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इसके बारे में बात ही नहीं करते हो। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ राइट और रॉन्ग, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू डोंट टॉक अबाउट इट टू एनीवन, बिकॉज दिस लाइक यू नो मुझे ऐसे फ्रेज सुनाई दे रहा है, कीपिंग योर कार्ड्स क्लोज टू योर हार्ट। सो वही चीज़ है यहाँ पे फॉर श्योर। आप इस चीज़ के बारे में आपका एक ऐसा हो सकता है। एंड यहाँ पर ये चीज़ है कि यू आर मेंट टू मीट दिस पर्सन। ये पर्सन आपके हाथ से कहीं नहीं जा रहे हैं, ये पर्सन आपके यू नो लाइक आपके पास लाइक आपकी लाइफ में ही आएंगे। दैट इज़ अ कॉन्फर्मेशन हेयर, पीपल हेयर कलेक्टिव, दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन फॉर यू। और ना यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ऐसा सोचना नहीं कि यू नो कि लाइक ऐसा कभी मत सोचना कि लाइक अभी नहीं तो कभी नहीं, बिकॉज यहाँ पर ऑनेस्टली उल्टा है। यहाँ पर ऐसा है कि अभी नहीं भी हो रहा तो ऐसा नहीं सोचना कि वो कभी नहीं होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आप दूर नहीं हो यूनियन से, यू आर नॉट अवे फ्रॉम यू नो योर यूनियन विद दिस पर्सन, विथ योर सोलमेट, बिकॉज यू नो यहाँ पर यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहे हैं टू एक्चुअली गो अहेड यू नो इन योर लाइफ एंड रियली बिकम दैट पर्सन जो यू नो इनको अट्रैक्ट कर सके। आई फील आप वो पर्सन बन रहे हैं, पीपल हियर, आप वो पर्सन बन रहे हैं। एंड व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर यू टू रियलाइज इज़ दैट कि ये पर्सन एंड आप you know like both of you people are still connected to each other, even if you don't know, or like you know you're not together, you don't know this person, maybe you don't, मतलब आपके लिए वो पर्सन शायद फिजिकली या प्रैक्टिकली अगर यू नो देखा जाए तो ये पर्सन आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स द बोथ ऑफ यू, लाइक समथिंग लाइक द रेड स्ट्रिंग ऑफ लाइक क्या बोल रही हूँ मैं, द रेड स्ट्रिंग थ्योरी। तो वैसे यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं। एंड
there is something that connects the both of you. And I feel, यहाँ पर एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में यहाँ पे. एंड व्हाट्स फनी इज़ कि बहुत ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे ना लोग like when they're together they are not really able to understand each other, they're not really able to talk to each other like that unfiltered वाले वे में. बट मुझे ऐसा लगता है कि विद दिस पर्सन आपकी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी जहाँ पर यू विल नॉट हैव टू से एवरी स्मॉल थिंग टू दिस पर्सन, बिकॉज मुझे लगता है कि they will understand because of this telepathic connection. They will feel, there will be a sync in the energies for both of you. Like आप लोग की एनर्जी सिंक करेगी यहाँ पे. एंड ये ना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि वो सिंक ऑफ एनर्जीज ही है. माई गॉड 11 ऑन द टाइमर. सो वो सिंक ही है एनर्जीज़ में जो कहीं ना कहीं आप लोगों का यूनियन करवाएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन हाउ कैन आई लाइक बी इन माई ओन एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब इन माई ओन एनर्जी से मेरा मतलब ये कि हमारी जो ऑथेंटिक वाइब्रेशन है, लाइक आपके केस में अगर मैं बताऊँ तो whoever इज़ वॉचिंग दिस, आपकी जो एक ऑथेंटिक वाइब्रेशन है, जब आप उस वाइब्रेशन में रहेंगे ज़्यादा टाइम, देन ओनली यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन आपकी ऑथेंटिक वाइब्रेशन से एंड आप उनकी ऑथेंटिक वाइब्रेशन से सिंक करेंगे. बिकॉज एट द कोर बोथ ऑफ यू आर सिमिलर. ऑब्वियसली सेम कोई नहीं होता, बट सिमिलर इन लाइक एनर्जीज. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उस चीज़ पे फोकस करें. एंड आई फील दैट पर्सन इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स ओनली. एंड लाइक and then the meeting will happen. Yeah, then the meeting will happen for sure. I think यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा एम्फोसिस है कि आपको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को. डोंट कॉम्प्लिकेट इट, बिकॉज हाँ बस मत करो यार. मतलब कॉम्प्लिकेट इसलिए मत करो क्योंकि देखो ओके मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो लोग भी देख रहे हैं ना, एक तो पहले आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इन अ जनरल मतलब लाइक जनरली ओवरव्यू में आपकी लाइफ में है. आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस लाइक योर लाइफ whoever is watching this, आपकी लाइफ ना मतलब it has not been like a straight path. मतलब everyone has some problems. और मुझे लगता है कि शायद आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन मतलब आपकी कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पीपल अराउंड यू. एंड इसलिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ठीक है वो कॉम्प्लिकेशंस है एंड वो कॉम्प्लिकेशन से गुज़र के यू हैव टू लाइक वो आपकी हेल्प के लिए है. सो आप उससे गुज़र रहे हैं. एंड आई फील बहुत लोग उन सारी कॉम्प्लिकेशंस या डिफ़िकल्टीज से आप बाहर भी आ चुके हैं. और अब इट्स लाइक अब ये टाइम है कि यू रियली सिंप्लीफाई योर लाइफ, सिंप्लीफाई योर माइंड एंड सिंप्लीफाई योर लाइफ. या सो इफ़ यू डू दैट तभी ना मतलब आपको भी मुझे लगता है यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी कि आप लोग ना थक गए हो यार. कहते हैं मतलब जैसे आपको लग रहा है यार कि लाइक I want a simple life now, because in some way that चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके कुछ मिलता नहीं है, बस दिमाग की दही होती है. तो क्यों करनी है आपको दिमाग की दही, राइट? सो या यहाँ पे ना और इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा सोचो मत ऐसा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. जस्ट go with your life, go on with your things, whatever you have to do, focus on that and you will get through it. Trust me, you will get through it. I know like कैमरे के उस पार जब आप मुझे देख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इतनी आसानी से चीज़ें निकल जाएंगी, बट
ट्रस्ट मी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई ऑल्सो हैव बिन ऑन दी अदर साइड, जहाँ पे मैं रीडिंग्स देखती हूँ, अभी भी होता है, बट अभी ऐसी फीलिंग नहीं होती एग्जैक्टली, बट जैसे मैं किसी की रीडिंग देखती हूँ एंड दैट अदर पर्सन सेज कि लाइक ओके दिस विल हैपन, एंड देयर वाज अ टाइम वेयर मुझे लगता था कि अरे तुम तो कह के चले जाते हो, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, बट थिंग्स डू हैपन, थिंग्स डू हैपन, बट उसके लिए थोड़ा हमें भी बिलीव करना पड़ेगा, लाइक थोड़ा थोड़ा बिलीव करना शुरू करो, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बिलीव इन लाइक इन योर लाइफ, इन इन योर सेल्फ एंड इन द यूनिवर्स, बहुत सारा। तो ये चीज़ है यहाँ पे, एंड एनीथिंग एल्स स्पिरिट। पता है मुझे ना एक और चीज़ कहनी है यहाँ पे कि लाइक आई फील जो लोग भी देख रहे हैं आपकी लाइफ में ना, एक्चुअली में प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक इट इज़, लव isn't just about कि I should be with someone and then things go on. No, I feel love empowers you, love strengthens you, love आपको कहीं ना थोड़े से आपको एक सही रास्ते पे लेके आता है प्यार, मुझे ऐसा लगता है। लाइक इफ़ आई हैव टू इफ़ आई हैव टू गिव एन एग्जाम्पल है, आई फील आपके साथ हुआ होगा कि आप ना, आपके हमेशा से या फ्रॉम अ वेरी यंग एज यू वांटेड, लाइक जब आपको समझ में आता है दैट ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स एंड मतलब पूरी लाइफ के बारे में, या ऐसे कह लो कि दुनियादारी जब थोड़ी बहुत समझ में आने लगती है फ्रॉम अ यंग एज, तो मुझे लगता है तब से यू हैड दिस ड्रीम ऑफ लाइक हैविंग अ परफेक्ट लव लाइफ, और a significant love life. And I feel यहाँ पे important आपके लिए लव लाइफ लाइक आपको पता भी नहीं था कि मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट आपके लिए तब से रहा है जब आपको पता भी नहीं था कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक यू डिडंट इवन रियलाइज एट दैट मोमेंट, बट यू स्टिल हैड दैट कि यार मुझे ऐसी एक लव लाइफ चाहिए, या आई वॉन्ट माई लव लाइफ टू बी लाइक सिग्निफिकेंट। सो ऐसे यहाँ पे मुझे आपकी थिंकिंग लग रही है अबाउट योर लव लाइफ यहाँ पर। और पता है बात ये भी है कि आपको लगता है कि यार, आपको लगता है कि ओके मुझे लगता है आप लोग के अंदर ना वो प्रैक्टिकलिटी एंड वो इमोशंस का एक बहुत सही बैलेंस है, और वो बैलेंस लाइक अगर आपको लगता है कि अभी नहीं है तो फॉर श्योर आपके अंदर वो बैलेंस बिल्कुल आएगा, बिकॉज वो बैलेंस की वजह से आपको समझ में आएगा कि लाइक प्रैक्टिकली एंड लाइक स्पिरिचुअली एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, लाइक या एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल सकता है, या लाइक या मेरे स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई है, ऐसा नहीं है। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको ना, आपको कहीं ना आपको सेंस होता है अदर पीपल, बाकी लोग के थॉट्स, बाकी लोग की एनर्जीज, और आपको पता है कि यार इफ़ आई रियली से टू पीपल व्हाट आई वांट, और माई लाइक इनर मोस्ट थॉट्स टू समवन, द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी कि लाइक maybe you're too imaginative, maybe you're too unreal or too in your own la la land or something. पर यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ है वो वो इमेजिनेशन, वो क्रिएटिविटी एंड वो ला ला लैंड में घूमना, वो आपकी स्ट्रेंथ है। एंड लाइक आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वो विजुअलाइजेशन ऑफ हाउ you will be with your person, how will you like maybe you imagining about a day of my life with my future sorry, my soulmate or future spouse, which can be the same for someone. So आप ऐसे इमेजिन अगर करते हो, या अगर आप ऐसे करोगे तो लाइक यू विल एक्चुअली स्टार्ट टू फील इट, एंड आपको व्हेन दैट फीलिंग हैपन्स आपको लगेगा कि यार
this person is with me, this person and me, like, we're not separate at all, even if we are maybe physically not together, or maybe physically that person does not exist for me or something, but आपको समझ में आएगा कि there is someone with me at all times, and I am connected to someone, and I'm already in love with someone even before knowing that person. So, all of this is a journey, all of this is a really, I would say, एडवेंचरस जर्नी जिस पे आपकी आपकी लव लाइफ पहुंचने वाली है यहाँ पर. और मुझे लगता है कि नाउ कमिंग बैक टू व्हाट डज लाइक जुलाई 2026 हैज़ इन स्टोर फॉर यू, सो द रिमेनिंग जुलाई 2026. सो यहाँ पर वही रियलाइजेशंस है जो मैंने कही, of you realizing that I am not separate from my divine counterpart, I am not separate from my soulmate, I am not separate from the true love of my life, because yeah, we're not separate. आपको ये ना, मतलब आपको एक बहुत ठोस यकीन या क्या कह लो, एकदम बिलीफ होने वाला है इस फैक्ट के ऊपर. एंड जुलाई 2026 will do that for you, people. Yes. Anything else, Spirit? Okay, so I think that is all I'm getting for you. Like, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जुलाई 2026 जो आपको देने वाला है वो ये है कलेक्टिव, जो मैंने कहा अबाउट योर लव लाइफ. यस. और अगर आप एक रिलेशनशिप में, अगर like you have been with someone for some time, like एक सीरियस रिलेशनशिप में अगर आप है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है आपको ना वो कंपैटिबिलिटी, वो अंडरस्टैंडिंग विद दिस पर्सन, वो आपको दिखने लग जाएगी. वो अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगी विद दिस पर्सन. लाइक यू विल नो कि यार ये हमारा आपको खुद को ऐसा लगेगा कि व्हाट अ मैच, दिस इज सच अ गुड मैच, लाइक मी एंड दिस पर्सन. तो उसके एविडेंसेस ऐसे बोल रहे हैं जैसे इंटरोगेशन कर रहे हैं, बट उसके साइंस आपको मिलने वाले हैं जुलाई 2026 में, फॉर एनीवन वाचिंग दिस. सो या, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वन, and please be grateful to all the signs जो भी आपको मिलते हैं, because yeah, not everyone is lucky to receive those signs, right? So, and also because you're a chosen one, right? So yeah, so I think एक सेकेंड, मुझे एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पे, और वो ये है कि नाइट टाइम काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है जुलाई 2026 का, जो बाकी का महीने उसके अंदर. सो इफ़ यू फील लाइक कि मुझे नाइट में जाके लाइक मे बी स्टार गेजिंग करना है, मून गेजिंग करनी है मुझे, या लाइक आई जस्ट वॉन्ट टू वॉक फॉर सम टाइम, या मे बी लाइक मैं हेडफोन्स पहन के गाना सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ टू मे बी सूद माई माइंड एंड लाइक या फील गुड. So I think that would be a pretty good idea July 2026 में. So you can do that. And anything else? And I think that is all I'm getting for you people today. थोड़ी सी अजीब सी रीडिंग हो गई, मतलब मैं पहले आपकी लव लाइफ के बारे में बात करने लगी, एंड then it came that this will happen in July for in that context. So yes, so yeah, I shall see you in my next reading. And also like please take what resonates, leave the rest.
And if you like how I read cards, you can connect to me, or like really subscribe to this channel, like, share, and comment to claim this reading. Yes, please comment to claim this reading. और like, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑब्वियसली मतलब नहीं है, मैं मतलब आप फिर बस सुन के चले जाएंगे. So yeah, you can do that if you want that. And yes, I am available for personal readings, so you can connect to me in that case. And yeah, I shall see you in my next reading. Until then, take care, lots of love. Bye.